الرحیم ادب اللغتی ما اثر عن شعرائها وكتابها من بدائع القول المشتمل على تصور الأخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقيقة مما يحذب النفس ويرقق الحس ويثقف اللسان، وقد يطلق الأدب على جميع ما صنف في كل لغة من البحوث العلمية والفنون الأدبية، فيشمل كل ما أنتجته خواتر العلماء وكرائح الكتاب والشعراء۔ یہ حسن زیات بہت امپورٹنٹ ہے پیپر وہ یونٹ 1 کے لیے اور اسی طریقے سے یونٹ 2 کے لیے، کیونکہ یہ دو جو چیپٹر ہیں، دو یونٹ ہیں، یہ حسن زیات میں بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ادب اندلسی کا چیپٹر اچھا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یونٹ 3 کا آدھا پارٹ اور یونٹ 1 اور یونٹ 2 یعنی 2.5 یونٹ جو ہیں ہمارے حسن زیات سے بہت اچھے کور ہوتے ہیں، لہٰذا حسن زیات کو ہمیں بہت اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ میں والمؤرخون یرجعون العرب الى 3 طبقات، جو مؤرخون ہیں وہ عرب کی کو 3 قسموں میں بانٹتے ہیں، 3 قسموں میں بانٹتے ہیں، اور اس کو میں بہت اچھے سے سمجھاتا ہوں آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں، کہ پہلے تو ہیں بائدہ، دوسرے ہیں عاربہ اور تیسرے ہیں مستعربہ۔ موٹے طور پہ آپ جانیں کہ ایک تو وہ ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، بائدہ ہیں جو، یہ بائدہ ختم ہو چکے ہیں، اور ابھی جو زندہ ہیں ان زندہ میں ہماری صرف 2 قسمیں بستی ہیں، اور وہی اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو 3 قسمیں جو ہیں ٹوٹلی، ان میں سے پہلی ہے بائدہ، جس کے بارے میں حسن زیات نے لکھا وَهُمُ الَّذِينَ دُرِسَتْ أَخْبَارُهُمْ وَتُمِسَتْ آثَارُهُمْ۔ دُرِسَ مانے ہوتا ہے مٹ جانا، دُرِسَ مانے ہوتا ہے مٹ جانا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی خبریں مٹ گئیں، یعنی جن کی نیوز نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا بہت زیادہ، وَتُمِسَتْ آثَارُهُمْ، اور ان کے کچھ بھی نشانات ہیں وہ بھی مٹ چکے ہیں۔ نشانات مطلب کھنڈرات وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے گھر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی مٹ چکے ہیں۔ فلم یسجل لہم التاریخ، تو فلم یسجل تو ریکارڈ نہیں کیا ہے کس نے، لہم ان کے بارے میں، تاریخ نے، تو تاریخ نے ان کے بارے میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا ہے، کچھ ہے بھی جو کچھ ہے، الا صفحات مشوہات، کچھ اسی طریقے کے بیکار جن سے کچھ معلومات نہیں حاصل ہوتی ہے، وہ صفحات بس موجود ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لا تنفی ظنا ولا تثبت حقیقتا، جن صفحات سے نہ تو ہمیں قطعی طور پہ کسی بات کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ بھی صحیح پتہ نہیں چلتا ہے۔ ان کے مشہور قبائل کیا ہیں؟ یہاں پر صرف 4 قبیلے دیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر عاد سمود، یہ ایک جوڑا بنا کے یاد کر لیں، عاد سمود، تسم و جدیس اور سحار و جاسم، 6 قبیلے، تو 3 پیئر بنا کے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ پہلا کس کو؟ عاد و سمود، ان کا تذکرہ تو ہمارا کس میں ہے؟ ہود علیہ السلام کی، اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قومیں ہیں یہ، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اور باقی ان کا تسم کا، جدیس کا یا جدیس جس کو کہیں، ایک پیر یہ بنا کے یاد کریں، اور اسی طریقے سے آپ جو سحار و جاسم ہے نا، سحار و جاسم، ایک پیر وہ والا بنا کے آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا، یہ اتنے 6 قبائل ان کے یاد رکھیں گے۔ بائدہ، اب میں اس لفظ کے اندر اس میں جاتا ہوں، بائدہ مانے ہوتا ہے ہلاک ہونا، بائدہ مانے ہلاک ہونا، کیا ہوتا ہے؟ بادہ یبید مانے ہلاک ہونا، چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ ہلاک ہو گئے ہیں۔ احمد علی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی راغب، جی جی۔ وعاربہ، اور عاربہ کون سے ہیں؟ اب بائدہ تو ختم ہو گئے، یہ رہے نہیں، اب وہ 2 جو 3 ہماری قسمیں ہیں، جو 3 انہوں نے بتائی ہیں کہ 3 طبقات ہیں عرب کے، ان میں سے ایک جو زندہ ہیں، 2 زندہ ہیں، ایک ختم ہو گئے، 2 زندہ ہیں، ان 2 زندوں کو ہم پڑھیں گے، اور یہی 2 بڑی قسمیں جو ہیں آپ کی ہمارے عرب میں پائی جاتی ہیں اور عصر جاہلی میں پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے ہیں عاربہ۔ عاربہ کا اصل معنی کیا ہے؟ عاربہ کا مطلب اصل جو عربی ہے، عاربہ کا لغوی معنی اگر آپ کو سمجھنا ہو، اصل مطلب کیا ہے کہ جو اصل جو عربی ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مستعربہ۔
मुस्तारिबा, जिसका मतलब क्या है कि ये लोग असल अरबी नहीं है। क्या मतलब है? यानी ये लोग असल अरबी नहीं है मगर इन्होंने अरबी को अपना लिया है। मुस्तारिबा ये बाब इस्तिफाल से है, माखजुल मजदर इसका एक आप जानते होंगे बाब इस्तिफाल की जो खुसूसियात है। तो गोया कि इन्होंने अरबी है नहीं ये असल में, लेकिन अरबी को इन्होंने अपना लिया है। ठीक है, तो आरिबा कौन है? आरिबा असल अरबी है। वहुमुल यमनियून मुंतमून इला यारुब बिन कहतान, ये वो यमनी है जो कि जिनकी निस्बत होती है यारुब बिन कहतान की तरफ। ठीक है, जिनका तस्करा यारुब बिन कहतान, इनका तौरात में जिक्र है किस नाम से? यारिह बिन यक़दान के नाम से। ये पीवाईक्यूज में कहीं पर, यूजीसी नेट में नहीं लेकिन कहीं पर किसी एंट्रेंस एग्जाम में एमए वगैरह के ये आ चुका है। यारुब बिन कहतान का तौरात में नाम क्या है? यारिह बिन यक़दान। ठीक है, तो असल जो बड़ी जो क्लासिफिकेशन है वो है कहतानियों की और अदनानियों की। नंबर 1 कहतानी और इसी तरीके से अदनानी। मेरी पिक्चर आपको दिख रही है ना सही से? जी सर। जी, तो असल जो क्लासिफिकेशन है वो कहतानियों की है और अदनानियों की है। ये तो हम कह सकते हैं कि इस्तिलाह है उनको बोलने के लिए, एक इस्तिलाही नाम है आरिबा और मुस्तारिबा, लेकिन जो असल अक़साम है नाम के हिसाब से वो है कहतानी, इसी तरीके से अदनानी। कहतानी और अदनानी, कहतानी ही असल अरबी हैं। अल कहतानियून हुम असलुल अरब। ठीक है, और उन्हीं की अरबी जुबान है। वरना जो अदनानियून है या जिनको हिजाजियून भी बोलेंगे, क्यों हिजाजियून? हिजाज में रहने की वजह से वो हिजाज में रहा करते थे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा वयज़उमुल अरब, और अरब का कहना है अन्नहु अस्लु लिसानिहिम। ठीक है, कि जो अरबी जुबान है वो इन्हीं की असल जुबान है। किनकी? आरिबा लोगों की, कहतानी लोगों की असल जुबान है। व मस्दर बयानिहिम, तो इसको हमने समझ लिया। उसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आरिबा जो है यही असल अरबी है जो कि कहतानी है। यारुब बिन कहतान की तरफ इनकी निस्बत है। यारुब बिन कहतान जिनको अबुल लुगा अल अरबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यारुब बिन कहतान जिनको अबुल लुगा अल अरबिया कहा जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद अपनी जुबान पे हस्सान बिन साबित। अब इससे भी पता चला कि हस्सान बिन साबित कहतानियों में से है। किस कबीले से हैं हस्सान बिन साबित? मुंजिर कबीले से हैं। किससे हैं? मुंजिर कबीले से हैं। और मुंजिर कबीला भी आएगा, ये नीचे दिया हुआ है, देखिए नीचे। और मुंजिर कबीला कहतानियों से ताल्लुक रखता है। किससे ताल्लुक रखता है? कहतानियों से ताल्लुक रखता है। यहां पर जो है तअल्लमतुम मिन मंतिक़ शेख यारुबी, ठीक है, अबीना फसिरतुम मुअर्रबीन ज़वी नफरी। तो उन्होंने कहा तुमने तो हमारे बाप की जुबान सीखी है। यारुब, बाप कौन है इनके? यारुब। तो पता चला हस्सान बिन साबित यारुब बिन कहतान यानी अपनी जुबान, यानी अपनी कहतानियों की जुबान होने पर फख्र कर रहे हैं कि अरबी जुबान जो है असल हमारी जुबान है। अब यहां पर भी इस तरीके की चीजें याद करेंगे। दो बड़े कबीले हैं, किसके? दो बड़े कबीले हैं कहतानियों के, जिनको आरिबा कहते हैं इस्तिलाही अल्फाज में। एक है हेमियर और दूसरा है आपका कोहलान। मैं जल्दी इंशाल्लाह एक पेन टैब मंगाने वाला हूं, फिर मैं लिखा करूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बगैर लिखे मुझसे भी बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता जब तक लिखा नहीं। ठीक है, तो दो बड़े कबीले हैं कहतानियों के, यमनियों में से। यमनी मतलब कहतानी आरिबा के दो बड़े कबीले हैं, हेमियर व कोहलान। हेमियर व कहलान या कोहलान कहेंगे। ठीक है, दो बड़े कबीले टॉप लेवल पर ये हैं, हेमियर व कोहलान। यहां पर देखें, यहां पर हेमियर और नीचे वाली लाइन में, दूसरी लाइन में कोहलान आएगा। अब जब हेमियर है, अच्छा मैं इसको यूज कर लेता हूं, क्लियर है? ये देखें अब दिखता होगा, हेमियर जो हो गया, ये हेमियर हो गया आपका, ये हेमियर, और इसके बाद यहां पर कोहलान आएगा। ठीक है, यहां पर कोहलान आएगा। अब हेमियर में से कौन कौन है? तो हेमियर में से जैद अल जमहूर है, एक खुदाआ है, अस्सकाकिक है। तो हेमियर के तीन कबीले, हेमियर के अंडर में तीन कबीले, जैद अल जमहूर, खुदाआ, अस्सकाकिक। कौन कौन? जैद अल जमहूर, खुदाआ, अस्सकाकिक। ये याद कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन असल में क्या होता है जब हमारी सब चीजें याद हो ना तो कॉन्फिडेंट आता है। आप कुछ भी पूछ लो भाई साहब, क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। आप कुछ भी पूछ लो, हम सब याद करके आए हैं, कुछ भी नहीं पूछ सकते। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस होना बहुत सारी चीज बढ़ा देता है। तो दो बड़े कबीले, हेमियर में से तीन कबीले उसके अंडर में आए, जमहूर, खुदाआ, अस्सकाकिक। फिर उसके बाद कहलान के तीन कबीले, कहलान के अंदर, कहलान जो बड़ी एक शाख है, उसके अंडर में कौन कौन से कबीले आते हैं? हमदान, तय, मुजहज, किंदा और लखम। किंदा किनका है? किंदा है इमरुल कैस का।
जो कि एक बड़ी हुकूमत थी। लख्म कौन है? लख्मीयीन ये मुनादरा वाले हैं। मुनादरा वाले जानते हैं ना, वो मुंजिर बिन मा अबी समा, इसी तरीके से नोमान है, ठीक है, अबू काबूज नोमान बिन मुंजिर हैं, इसी तरीके से हम बहुत सारे, आमिर बिन हिंद हैं, ये मशहूर जो मुलूक हैं। तो मुनाजरा वाले लख्मी हैं। लख्मी तो पता चला कि मुनाजरा वाले भी आपके कहतानी हैं। इसी तरीके से किंदा वाले, इमरुल कैस का कबीला जो हुकूमत करता था, उसके बाप वगैरह, वो भी आपके कौन है? वो भी कहतानी है। इसी तरीके से हमदान, तय, मजहज और किंदा, लख्मी, ये सारे के सारे कितने हैं? ये आपके कहतानी है। तो पता चला जो ऊपर की दो बड़े कबीले थे किसके? कहतानियों के। नंबर एक हेमियर था, तो उसके अंडर में 3 आते हैं, जैद अल जमहूर, कुदाआ अस्सकाकी, और जो कोहलान है एक बड़ी शाख, 2 बड़ी शाखों में से एक बड़ी शाख, उसके अंडर में से कितने आते हैं? 5 आते हैं, हमदान, तय, मजहज, किंदा और लख्म, ठीक है। वो मिन लख्म, और लख्म में से ही आपके बनुल मिंजिर हैं, लख्म में से ही बनुल मिंजिर है। लख्म के अंडर में जो लख्मीयीन है, जो मुनाजरा है। दिलशाद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आप बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? तो लख्म जो है, लख्म के अंडर में बनुल मुंजिर आते हैं, जो कि हीरा में थे और अज़द में थे, ठीक है। और बनुल मुंजिर आते हैं, और इसी तरीके से अज़द आते हैं। तो अज़द, कबीले अज़द से कौन ताल्लुक रखता है? ठीक है, कबीले अज़द से आप बताएं। शनफरा ताल्लुक रखता है, शनफरा अल अज़दी, याद है? कौन ताल्लुक रखता है? शनफरा ताल्लुक रखता है। और इसी तरीके से वमिनल अज़दी, और अज़द के अंदर कौन कौन आते हैं? औस आते हैं, खज़रज आते हैं, जो कि मदीना में थे, ठीक है। इसी तरीके से अज़द के अंदर कौन आते हैं? गसासिना आते हैं, जो कि शाम में हुआ करते थे। तो अज़द के अंदर में 3 आते हैं, औस व खज़रज, जो कि मदीना में होते थे, गसासिना जो कि शाम में होते थे, ठीक है। और इसी तरीके से जो हेमियर है, हेमियर कबीला जो ऊपर वाली शाख है, ये यमन में हुकूमत किया करते थे। कहां पर? यमन में इनकी हुकूमत हुआ करती थी। क्लियर है? उसके बाद यहां पर देखें, फिर उसके बाद दूसरी किस्म कौन सी आती है? मुस्तारिबा की। अब मैं आपको याद कराना चाहूं बगैर देखे, नंबर 1 आपको याद करना है, पहली किस्म है बायदा की। किसकी है? पहली किस्म है बायदा की। बायदा का मतलब जो हलाक हो गए, उनके 6 कबाइल हैं। नंबर 1 आद व समूद, एक पेयर है। इसी तरीके से सिहार व जासिम, एक पेयर बनाए, एक जोड़ा बनाए। इसी तरीके से तस्म व जदीस, एक जोड़ा बनाए। तो 6 कबाइल किसके अंडर में आते हैं? बायदा के अंडर में आते हैं। बायदा का मतलब जो बहुत पहले हलाक हो गए, उनके बारे में कोई मालूमात हमारे पास अवेलेबल और मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद जो अभी मौजूद हैं, या असरे जाहिली में या अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मौजूद थे, वो अरब 2 किस्मों में बांटे जाते हैं। नंबर 1 कहतानी, नंबर 2 अदनानी। इनके कुछ इस्तिलाही नाम है, जिसकी जैसे कि कहतानियों को हम आरिबा के नाम से जानते हैं। आरिबा का मतलब असल अरबी, चुनांचे हम जानते हैं कहतानी ही असल अरबी है। और कहतानी जो है आपके कहां पर रहा करते थे? कहतानी आपके यमन में रहा करते थे, जिसकी वजह से ये यमनी है। क्लियर है? कौन है? यमनी है। अब इन कहतानियों की, इन आरिबा के लोगों की 2 बड़े शाखें हैं, 2 बड़े कबीले हैं, हेमियर व कोहलान। हेमियर व कोहलान, हेमियर के अंडर में 3 कबीले आते हैं, जैद अल जमहूर, कुदाआ अस्सकाकिक। और कोहलान के अंडर में 5 कबीले आते हैं, हमदान, तय, मजहज, किंदा, लख्म। और किंदा और लख्म बड़े कबीले हैं, चुनांचे लख्म में से बनु मुंजिर हीरा में थे, और अज़द भी होते हैं। और अज़द के अंडर में औस और खज़रज, जो कि मदीना में हुआ करते थे, और गसासिना, जो एक हुकूमत आप जानते हैं, गसासिना, हारिस बिन अबी शमर अल गस्सानी, जिनके यहाँ पर नाबिगा दुबियानी रहे। इसी तरीके से हस्सान बिन साबित भी उनके पास उनकी मदह वगैरह किया करते थे, ठीक है। और हेमियर की जो हुकूमत हुआ करती थी, वो यमन पे हुआ करती थी। असल में क्या मतलब है, किताबों से जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल कंसेप्चुअल वाइज जो है, कंसेप्चुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जो है किताबों से जुड़े हुए नहीं है, तो सिर्फ फैक्ट करके, फैक्ट रट के, फैक्ट याद करके आप जो है जेआरएफ तो कभी भी हासिल नहीं कर सकते, मुझे जो बात समझ में आती है। फिर उसके बाद दूसरी किस्म की है मुस्तारिबा की। मुस्तारिबा का मतलब जो अरबी नहीं है, लेकिन अरबी को उन्होंने अपनाया है और अरबी बन गए फिर, ठीक है। अरबी को उन्होंने लिया है, मुस्तार लिया है, उधार लिया है। क्लियर है? अरबी नहीं है असल, उनकी असल अरबी नहीं है, चुनांचे देखेंगे। और इनको क्या कहा जाता है? अदनानियून, क्योंकि ये इनका नसबनामा जो है अदनान से जाकर मिलता है। इनका नसबनामा किससे मिलता है? अदनान से जाकर मिलता है। वहुम वुल्दे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये मुस्तारिबा जो है, अदनानी जो है, हिजाजी जो है, नजारियून जो है, 3 नाम बोल रहा हूं मैं। कौन बोल रहा हूं? अदनानियून, हिजाजियून, नजारियून, ये मुस्तारिबा के नाम हैं। तो मुस्तारिबा ये कौन लोग हैं? ये इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। ये हिजाज में आए थे। कब आए थे ये लोग हिजाज में? 19वीं सदी मिलाद से,
یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے BC قبل مسیح یہ کب آئے تھے؟ 19 سال پہلے، ٹھیک ہے، 19 سال پہلے قبل مسیح یہ آپ کے حجاز میں آئے تھے. اور اگر میں تھوڑا انڈین ہسٹری پہ لے کے جاؤں تو یہ وہ زمانہ ہے جبکہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے نا وہ ختم ہو رہی تھی، کیونکہ انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے تقریباً 17ویں صدی میں ختم ہو گئی ہے. 17 قبل مسیح میں انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے آپ کی ختم ہو گئی ہے. کلیئر ہے؟ تو گویا کہ یہ 200 سال پہلے آئے تھے حجاز میں جب انڈس ویلی سیولائزیشن ختم ہوئی تھی. ثم صاہر ملوک جرہم، چنانچہ وہاں پر انہوں نے اپنی رشتہ داری بڑھائی، رشتہ کر لیا انہوں نے. جرہم کون؟ عربی قبیلہ ہے. فکان لہم بنون وعقاب، ٹھیک ہے، ظلوا فی مجاہل الزمن فلم یعرف التاریخ منہم الا علی التحقیق الا عدنان. تو بہت کچھ ان کے لوگ آئے، ان کے بچے ہوئے، لیکن تاریخ میں صرف عدنان کا ذکر مشہور ہے، صرف عدنان کے نام سے جانتے ہیں لوگ، عدنان کو جانتے ہیں. وَإِلَيْهِ عمود النسب العربی الصحیح، اور وہیں تک ہی جو عربیوں کا صحیح نسب نامہ پہنچتا ہے وہ انہی عدنان تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کے 4 قبائل بڑے ہیں. ان کے کتنے بڑے قبائل تھے؟ ان کے 2 بڑے قبائل تھے. کون سے تھے؟ حمیر و کوہلان. لیکن ان لوگوں کے 4 بڑے قبائل ہیں. سب سے پہلے جو آپ کا آئے گا ربیعہ و مدر. کون آئے گا؟ ربیعہ و مدر جو ہے آپ کا بڑے قبائل میں آئے گا. کلیئر؟ ربیعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کا مدر ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر انمار ہو گیا، ایاد ہو گیا. یہ 4 بڑے قبیلے ہیں، ربیعہ، مدر، انمار و ایاد. اب ربیعہ کے انڈر میں بہت آئیں گے، مدر کے انڈر میں بہت آئیں گے، انمار و ایاد کے انڈر میں کچھ آئیں گے. چنانچہ یہاں سے دیکھیں ہم ربیعہ کے انڈر میں کون کون آتا ہے. ربیعہ کے انڈر میں آتے ہیں عبد القیس. ربیعہ کے انڈر میں کون آتے ہیں؟ عبد القیس. اس کی آپ جو ہے ایک وہ بھی بنا سکتے ہیں، میں نے بھی بنایا تھا. آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ ایک جو شجر نامہ ہوتا ہے نا، شجر نسب، وہ بھی بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ لکھیں ربیعہ کو، مزر کو، پھر انمار کو، ایاد کو، پھر ان کے انڈر میں لے کے چلے جائیں. میں نے بنایا تھا تو اس سے اچھے سے یاد ہو جاتا ہے. ربیعہ کے انڈر میں کون آئیں گے؟ عبد القیس آئیں گے. عبد القیس کے انڈر میں کون آتے ہیں؟ بکر و تغلب آتے ہیں، جو کہ وائل کے بیٹوں میں سے ہیں. اسکرین دکھائی نہیں دے رہا ہے جی؟ ابھی بھی نہیں دکھائی دے رہا؟ اسکرین میں آپ دکھائی دے رہے ہیں؟ اسکرین نہیں دکھائی دے رہا؟ اسکرین پہ صرف آپ ہیں. اب بتائیں، اب ہوں نا، اب آگئی اسکرین پہ آپ دکھائی دے رہے ہیں، جو بک پڑھا رہے ہیں شاید وہ نہیں دکھا دے رہے ہیں. نہیں، اب تو دکھاتے ہوں گے، اب دکھتا ہوگا شاید. اب جی نہیں، آپ دکھائی، اب بھی نہیں دکھا؟ جی نہیں. اچھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب بھی نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ اس ٹائم سے آپ ہی دکھائی دے رہے ہیں، بیچ بیچ میں جو ہے نا چھوٹا ہو کے دکھائی دیتا تھا کتاب جو پڑھا رہے تھے. اب کچھ نہیں دکھ رہا؟ اب میں صرف میں ہی دکھ رہا ہوں. جی جی جی. اچھا چلیے پھر میں ایک بار اور شیئر کرتا ہوں. جی اب کتاب دکھائی دی. اچھا، یہ راغب کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو شاید یہ لیٹ جوائن ہوں گے ہے نا؟ نہیں، یہ سب سے شروع میں کتاب پہلے 2-3 منٹ دکھائی رہا تھا، اس کے بعد نہیں دکھائی دیا. اچھا. چلیے اب ہم شروع کر دیتے ہیں اس کو. اب تو دکھ رہا ہے نا؟ جی. تو جو تیسری قسم ہے آپ کی، تیسری قسم جو ہے، ہم کس کو پڑھ رہے تھے؟ مستعربہ کو. مستعربہ گویا کہ وہ کون ہے؟ وہ عدنانی ہے، کیونکہ عدنان ان کے جد امجد ہیں، ان کے دادا ہیں عدنان. اور عدنان کے علاوہ ان کو حجازیون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حجاز میں یہ لوگ رہتے تھے. حجازیون کہا جاتا ہے کیونکہ حجاز میں یہ لوگ رہتے تھے. ان کے 4 بڑے قبائل ہیں. ان کے کتنے؟ 4 بڑے قبائل ہیں. 4 بڑے قبائل ہیں ان کے. وہ کون سے ہیں؟ پہلے ربیعہ ہے، پھر اس کے بعد مزر ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ انمار کو دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ایاد کو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلا جو ربیعہ ہے اس میں سے عبد القیس آئیں گے ان کے، اور عبد القیس کے نیچے کون آئیں گے؟ بکر و تغلب، جو کہ وائل کے بیٹے ہیں. تغلب سے کون ہے؟ عمر بن کلثوم التغلبی. اسی طریقے سے اختل التغلبی. بکر سے کون؟ بکری ہیں. اسی طریقے سے حارث بن حلزہ الیشکری البکری ہیں، یہ قبیلے بکر سے ہیں. قبیلے بکر و تغلب کے درمیان کون سی لڑائی ہوئی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟
कबीले बकर व तगलब के दरमियान कौन सी लड़ाई हुई थी? जंगे बसूस। जी जी, हरबे बसूस हुई थी कबीले बकर और तगलब के दरमियान। ठीक है, तो हमने देखा वमिन मुजर, तो रबिया का इन्होंने बता दिया। रबिया का क्या बताया कि रबिया के अंडर में अब्दुल कैस के अंदर बकर व तगलिब जो कि वाइल के बेटे हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो किस्म है, दूसरे बड़े कबीला है इनका मुजर है। दूसरा बड़ा कबीला कौन सा है? इनका मुजर है। और मुजर से बताते हैं कि मुजर में कौन कौन आते हैं? कैसे ऐलान ऊपर था, रबिया के अंडर में आता था अब्दुल कैस। ये फर्क समझना थोड़ा सा, रबिया के अंडर में क्या आता था? अब्दुल कैस, लेकिन मुजर के अंडर में आता है आपका कैसे ऐलान। ठीक है, वह बुतूनुल यास बिन मुजर। और इसी तरीके से दो आते हैं मुजर के अंडर में, कौन आते हैं? कैसे ऐलान और बुतूनुल यास बिन मुजर। कौन आते हैं? बुतूनुल यास बिन मुजर। फिर उसके बाद कैसे ऐलान के अंडर में, कैसे ऐलान के अंडर में कौन आते हैं? हवाजिन व गतफान। गतफान से कौन ताल्लुक रखता है पता है ना आपको? गतफान से कौन ताल्लुक रखता है? गतफान से ताल्लुक रखते हैं आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा अल गतफानी, याद है ना? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा अल गतफानी। तो जो गतफान है, ये हवाजिन और गतफान किसके अंडर में आती हैं? कैसे ऐलान के अंडर में। फिर उसके बाद गतफान से दो शाखें निकलती हैं, अब्स व ज़ुबियान की। अब्स व ज़ुबियान की। अब बताएं यहां पर अब्स व ज़ुबियान है, ये कि इनके दरमियान कौन सी जंग हुई थी? इनके दरमियान क्या हुई थी? इनके दरमियान तो आपके हरबे दाहिस वल गबरा हुई थी। दाहिस वल गबरा, जिसको हरबे सिबाक भी कहा जाता है। तो यहां से ये हमें पता चल गया, थोड़ी सी नॉलेज मिल गई कि बकर व तगलिब के दरमियान जो है वो कौन सी हुई थी? हरबे बसूस हुई थी। इसी तरीके से अब्स व ज़ुबियान के दरमियान कौन सी हुई थी? ये आपके हरबे दाहिस वल गबरा हुई थी। ठीक है, और इससे ये भी पता चला, अगर इस तरीके का कोई सवाल बनता है कि हरबे बसूस किसके दरमियान हुई, कहतानियों के दरमियान या अदनानियों के दरमियान, तो पता चलेगा अदनानियों के दरमियान हुई। फिर उसके बाद अब्स व ज़ुबियान किसके दरमियान हुई? कहतानियों के दरमियान हुई या अदनानियों के दरमियान हुई, तो पता चलेगा अब्स व ज़ुबियान भी आपके अदनानियों के दरमियान हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो यास बिन मुजर हैं, उनके अंडर में कौन कौन आते हैं? उनके अंडर में कौन कौन आते हैं? यास बिन मुजर के अंदर अम्मा औलादुल यास। यहां पर देखें, अम्मा औलादुल यास, जो यास बिन मुजर हैं उनके अंडर में कौन कौन आते हैं? उनके अंडर में आते हैं तमीम आते हैं, हुदैल आते हैं, बनु असद आते हैं, बनु असद। ठीक है, इसी तरीके से कनाना आते हैं। क्लियर है? ये हो गया। कहां से कितने आते हैं? 4 आते हैं। यास बिन मुजर के अंडर में कितने आते हैं? 4 आते हैं, तमीम, हुदैल, इसी तरीके से बनु असद और किनाना आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किनाना से कुरैश आते हैं। फिर कुरैश की भी बहुत सारी किस्में हैं, और कुरैश ही वो कबीला है जिससे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, फिर जो उसके बाद किनाना है, किनाना में से कुरैश आते हैं। फिर कुरैश को कह रहे हैं, कुरैश की भी बहुत सारी किस्में बन जाती हैं। यहां से सवाल आते हैं, और जब यहां से सवाल आ जाता है ना, तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस पे गौर नहीं किया। इल्ला ये कि मदरसे में गौर करके आए हो, मदरसे में पढ़ के आए हो, कभी कभी ये चीजें तारीख के ज़िम्न में पढ़ाई जाती हैं, जब हम तारीख इस्लाम वगैरह पढ़ते हैं या अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़ते हैं। तो आप देखें, कुरैश के चुनांचे कुरैश में से जुमह आते हैं, सहम आते हैं, मखजूम आते हैं, अब्दुद्दार आते हैं, अब्द मुनाफ आते हैं। कुरैश में कौन कौन? 5 दिए यहां पर, जुमह, सहम, मखजूम, अब्दुद्दार, अब्द मुनाफ। कितने? 5 दिए हुए हैं इन्होंने कुरैश के अंदर। फिर उसके बाद अब्द मुनाफ से अब्द शम्स आते हैं, नौफल आते हैं, मुत्तलिब आते हैं, हाशिम आते हैं। तो गोया कि अब्द मुनाफ से कितने आए? 4। अब्द मुनाफ से कितने आए? 4। अब्द शम्स, नौफल, मुत्तलब और हाशिम। और जो उम्वी हुकूमत है ना, उम्वी हुकूमत वो अब्द शम्स से ही निकली हुई है। किससे निकली हुई है? वो अब्द शम्स से ही निकली हुई है। अभी नीचे आएगा, देखेंगे। वो मिन हाशिम, और उसके बाद इनमें हाशिम में से अब्दुल मुत्तलिब आ गए। फिर उसके बाद, ठीक है, वो बहुत नीचे चले गए। चुनांचे यहां देखें, सवाल यहां पर बनता है। सवाल कहां पर बनता है? हम एक लाइन छोड़ के भाग जाते हैं। फल अलवियून यंतसिबून इला अली। जो अलवियून है वो उनकी निस्बत किसकी तरफ होती है? अली की तरफ। अब्बासियून, अली कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, जो चौथे खलीफा हैं। उसके बाद अब्बासियून की निस्बत किसकी तरफ होती है? अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। अब्बास कौन है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, सगे चचा, अब्बास की तरफ। और उम्वियून जो है, फलैसू मिन बनी हाशिम, वो बनी हाशिम से नहीं है। व इन्नमा हुम मिन बनी अब्द शम्स, वो हाशिम के भाई अब्द शम्स से ताल्लुक रखते हैं। तो उम्वियून जो है, उनका जो ताल्लुक है वो बनी अब्द शम्स से है। ये सवाल बन सकता है, और इसको आप हमेशा अपने जहन में रखिएगा, ताकि यहां पर आप
ना फंसे और आपका नंबर ना कटे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया आज में, ये सीखा हमने, जिसमें मोटे तौर पे हमने ये पढ़ा कि अरब की 3 बड़ी किस्में होती हैं। नंबर 1 बायदा, बायदा का मतलब वो लोग जो हलाक हो चुके हैं। उसके बाद जो लोग जिंदा हैं, जो जिंदा थे अल्लाह के रसूल के जमाने में या असरे जाहिली में या आज तक भी जिनके कबाइल फैले हुए हैं, वो अरब सिर्फ 2 तरह के हैं। एक हैं कहतानी और इसी तरीके से अदनानी, ये इनके नाम हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पे इनको कहतानियों को अदनानी कहा जाता है और इसी तरीके से कहतानियों को आरिबा कहा जाता है और इसी तरीके से अदनानियों को मुस्तारिबा कहा जाता है। अगर आरिबा और मुस्तारिबा की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं लैंग्वेज के हिसाब से, तो आरिबा का मतलब होता है जो असल अरबी हैं। चुनांचे यमन में रहने वाले कहतानी, बिल्कुल सही बात है, ये असल अरबी हैं। चुनांचे हस्सान बिन साबित जो हैं फख्र भी करते हैं। सवाल यहां से भी उठ सकता है कि ये पूछ लिया जाए तअल्लमतुम मिन मंतिक़ शेख या अरबी अबीना फसिरतुम मुअर्रबीना ज़बी नफरी, तो ये किसने कहा है? हमने पढ़ा हसन ज़य्यात में, यहाँ पर हसन ज़य्यात में, कि ये हस्सान बिन साबित का शेर है जो कि अपने अरबी होने पर, अपने यमनी होने पर, अपने कहतानी होने पर और अपने की अरबी जुबान हमारी असली जुबान है उस पर फख्र कर रहे हैं। चुनांचे आरिबा कहतानी जो कि यमन में रहते थे, अदनानी मुस्तारिबा जो कि हिजाज में रहते थे, जिसकी वजह से उनको हिजाजियून कहा जाता है अदनानियों को, और इसी तरीके से कहतानियों को यमनियून कहा जाता है। जो कहतानी है उनके 2 बड़े कबीले हैं, हिमियर व कोहलान। हिमियर के अंडर 3 आते हैं, इसी तरीके से कोहलान के अंदर 5 आते हैं। कौन आते हैं? 5 उसके अंडर में छोटे छोटे कबीले आते हैं। चुनांचे जो बड़े कबीले हम जानते हैं, औस व खजरज हैं, गसासिना हैं, किंदा हैं, बनु मुंजिर हैं, ये सारे के सारे कहतानियों के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? कहतानियों के अंडर में आते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा जो कहतानी आते हैं, मुस्तारिबा आते हैं, उनके 4 बड़े कबीले हैं। नंबर 1 रबिया, नंबर 2 मुजर, नंबर 1 रबिया, नंबर 2 मुजर, नंबर 3 आपका अनमार व अयाद। अनमार व अयाद के अंडर में कुछ क्लासिफिकेशन उन्होंने नहीं की है, लेकिन रबिया और मुजर के अंडर में जरूर उन्होंने बहुत सारी क्लासिफिकेशन की है कि उनकी शाखें कहाँ कहाँ गई हैं। चुनांचे रबिया से ये आते हैं, ठीक है, अब्दुल कैस आते हैं, इसी तरीके से वो आते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो आपके मुजर हैं उनसे ये आते हैं, तो उन्होंने काफी डिटेल की है। चुनांचे जो बड़े बड़े कबीले हैं, जी बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, यहीं पर मिलेगी और इसी की रिकॉर्डिंग मिलेगी। हालांकि आप इसकी टेंशन में ना